I, Arushi Sharma, co-founder of DITF, welcome you all today for our very first workshop that we are starting today. So, let's start with the DITF introduction and then we can start with our workshop. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्. So, this was a shlok taken by Bhagavad Gita, chapter 2, verse 50. And this is our founder and president of DITF. Each one of you know him because he's the person who got us all together. So this was the third edition of DITF Bulletin, which was released today. And if someone have not yet received the bulletin, please do mail us to ditfindia@gmail.com, and we would be more than happy to share this month's edition of DITF Bulletin. So this is the DITF Learning Center, which we started in our previous webinar, and on behalf of that this team came towards starting with various workshop, and today we are starting our first workshop on stress management by Meenakshi Dadij. So if you have any queries or any, you can write us to ditfindia@gmail.com. Please do not forget to follow us on YouTube page and our Facebook page. So now I would like to call upon Meenakshi Dadij, who is the person who is the she have completed her masters in psychology and previously did an internship with Fortis Hospital. She is currently working with Vidya NGO as a community counselor. She have also conducted various workshop and one-on-one counseling sessions. So today she'll be guiding us towards the stress management, the most important topic which we feel and even we see our young generation facing a lot of stress. So Meenakshi ji, I hand over to you to take it ahead from here. Thank you, Arushi. I hope I'm audible to everyone. Yes, Meenakshi ji. Okay. Good evening, everyone, and thank you, DITF and Devesh sir, for giving me this opportunity. I conducted one workshop earlier also, and it was a really good experience. This time we conducted this workshop specifically for students, student stress and how they can deal with that stress. In my initial slides, we will basically talk about stress and anxiety. Then later on, we will talk specifically for our students. So if you'll have any questions, you can write in your notes. And at least we will see the questions and we'll try to solve all the queries. So quickly, I'll just share my slide and give you presentation of 20 minutes only so that we'll have enough time for our question answer round. Yes. Give me permission for screen sharing, Arushi. Yes, Meenakshi ji, just a minute. Yeah. No, still I'm not able to do that. Please try now. Yeah. Yeah, now I can, I guess. Yeah. Can you see it now? No, I cannot see the screen.
Should I try it again then? Try once again. If needed, Yeah. I'll play from you. Is it visible now? Yes, it's visible. Okay. So how to deal with stress? So first we'll start with stress. What is stress? It is it clear, Arushi? Can you see it now? Yeah, it's clear. Hello. Yeah, it's Okay. clear, Meenakshi. Am I audible? Yeah, Yeah. you're clearly Okay, audible. thanks. Okay, just keep an eye on chat and solve it in between, right? Sure. So what is stress? Stress is psychological stress, psychological pain or emotional pain. So कई बार स्ट्रेसेस बाहर से आते हैं और कई बार हमारी फीलिंग्स अंदर से होती हैं एंड वी गेट स्ट्रेस्ड आउट. थोड़ा बहुत जो भी स्ट्रेस होता है इट इज ऑलवेज गुड बिकॉज वो मोटिवेट करता है हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए. हैव यू एवर रियलाइज्ड कि अगर बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा तो दे विल नेवर स्टडी, राइट? सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस गुड है लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस होता है तो दैट इज रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर मेंटल हेल्थ. यस. देन एक्सेसिव स्ट्रेस होने पे क्या होता है? इट बिकम एंजाइटी. एंड व्हाट इज एंजाइटी? इंटेंस एंड एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी. और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? फास्ट हार्ट रेट, रैपिड ब्रीथिंग, और आपको सांस लेने में तकलीफ कई बार नहीं होती है कि पैनिक अटैक टाइप से फील होता है. और हम अब एंजाइटी को कैटेगराइज करते हैं कि कितनी तरीके की एंजाइटीज होती हैं और हम किस तरीके से डायग्नोज करके देन वी ट्रीट क्लाइंट्स एक्चुअली. तो जब भी हमारे पास में कोई क्लाइंट आते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग के लिए, वी जस्ट ट्राई टू डायग्नोज दोज कैटेगरी एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, जिसमें आपकी नॉर्मल एंजाइटी हो सकती है लाइक एग्जाम रिलेटेड फियर हो सकता है, कोई फोबियाज हो सकते हैं. इस तरीके की एंजाइटी को हम जनरल एंजाइटी मानते हैं. पैनिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर आपको हार्ट अटैक काइंड ऑफ फीलिंग होती है एंड यू लॉस्ट कंट्रोल. जनरली हम ऐसे में लूज कर जाते हैं अपना कंट्रोल वगैरह. पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें कोई इंसिडेंट होता है एंड वी आर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट इंसिडेंट, दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप ऑफ फीलिंग्स, ऑब्सेसिव थॉट्स, or repetitive actions, like if I open the door, I'll check it again and again whether I did it properly or not, but those things and those behaviors are too much, and stereotype of feelings are there. So social anxiety, what is social anxiety? When you feel or when you get anxious when you are in a public place or somewhere else, कि आप ऐसी गैदरिंग भी फिर अवॉइड करेंगे, इन जगहों पे जाना भी आप अवॉइड करेंगे, और इन जगह के जो भी फंक्शंस वगैरह होंगे, बच्चे अक्सर ये कहेंगे नहीं वी डोंट वांट टू गो, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि हाँ उन्हें वो एंजाइटी है बेसिकली. फोबियाज, फोबियाज कई बार लिजर्ड से भी हो सकता है, आपको हाइट से भी हो सकता है, लिफ्ट से भी हो सकता है, तो दोज थिंग्स आर कम्स अंडर दिस. हाउ टू मैनेज एंजाइटी एंड स्ट्रेस, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. तो हमें एंजाइटी को समझने के लिए ये एबीसी मॉडल है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, उसको समझना बहुत जरूरी है. तो एंजाइटी होती कैसे है? सबसे पहले कोई इवेंट होता है, स्ट्रेस या एंजाइटी या फिर हमारा जो बिलीफ बनता है वो कैसे बनता है, विल फोकस ऑन. सबसे पहले कोई इवेंट हुआ, जैसे आपने किसी नई सोसाइटी में शिफ्ट किया, आपने नेबर से कोई हेल्प मांगी, नेबर डिडंट हेल्प यू, आपका बिलीफ बना कि इस पूरी सोसाइटी में नेबर्स ऐसे ही हैं एंड दे डोंट हेल्प मी. बिलीफ बना, उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंस होगा, आपका बिहेवियर होगा. बिहेवियर क्या होगा? अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब यहाँ पे ऐसे ही हैं. ये बिलीफ सिस्टम आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है. गलत कैसे हो सकता है? कि सारे नेबर्स ऐसे ही हैं. और सही कैसे हो सकता है कि नहीं एक नेबर ने गलत किया है, बाकी के नेबर्स ठीक हो सकते हैं. तो वी जनरली काउंसलर अटैक ऑन द बिलीफ सिस्टम.
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ऐसे 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिन पे हम अटैक करते हैं और जिनको कन्फ्रंट करके और उनको सही बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एक पड़ोसी ने गलत किया, साढ़े सी चीज गलत हुई, ओ ये बहुत बड़ी है, मैं वी जस्ट ट्राई टू चेंज लाना है, तो वी ट्राई टू चेंज द बिलीफ सिस्टम। तो काउंसलर्स जनरली ये काम करते हैं और बेसिकली 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में मानते हैं। अब हम हेल्दी कोपिंग स्किल्स कैसे मैनेज कर सकते हैं? अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं, ये हम अभी इन जनरल बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ स्लाइड्स में इन जनरल भी रखूं। तो हेल्दी कोपिंग स्किल्स में क्या क्या हो सकता है? आपको दो तरीके के कोपिंग स्किल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, एक तो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग और इमोशनल बेस्ड। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है। इफ यू कांट चेंज द सिचुएशन, प्रॉब्लम बेस्ड, और तब आना, डू आई नीड टू चेंज माय सिचुएशन और डू आई नीड टू फाइंड अ वे टू बेटर कोप विद द सिचुएशन, देन आप इसमें से एक चीज को सेलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म में यू हैव टू चेंज द सिचुएशन इफ इट इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? वॉकिंग अवे, if the relationship is not good for you, walk away from the relationship, finding an alternate or option, दूसरा फ्रेंड बना लिया या फिर कुछ और फाइंड आउट कर लिया। जैसे बच्चों ने अगर साइंस की हुई है और वो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने अगर प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म ऑप्ट किया है, तो वो क्या करेंगे? वो उस चीज को कंप्लीटली छोड़ के कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कोप अप करने की कोशिश करेंगे, साइंस स्ट्रीम को कंप्लीटली छोड़ेंगे, राइट? Preparing a to-do list to get out of the log jam. फिर आपको अपनी लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि I have to do this, this and this just to come out from the situation. Because आपको उस situation से adjust नहीं करना है, you just want to change the situation. So you will opt all these remedies. Creating healthy boundaries. Just learn how to say no. Right? If you can't do something, just learn how to say no in a proper manner. That is also necessary at times. Getting support from a friend or a professional. अगर आप कोई भी राह फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज एसेंशियल, वी ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड टेक सपोर्ट ईदर फ्रॉम योर हेल्थ, ईदर फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम अ प्रोफेशनल. Emotional based coping. If you are not able to change the situation, ऐसा किन conditions में हो कि जब we have lost our near ones या loved ones, ऐसा कुछ incident हो गया है इसके साथ आपको adjust करना है and you can't change the situation. उस condition में आप emotion based coping mechanism को use करते हैं. उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को divert कर सकते हैं, like cleaning the house. कई बार सिर्फ ड्रॉवर्स और ये सब क्लीन करने से भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है एंड यू कैन एडजस्ट वेरी वेल. और उसके बाद में आप उसी सिचुएशन को जब सोचते हैं तो आप बहुत हद तक डाइवर्ट हो चुके होते हैं. जैसे कलरिंग कर लिया, ड्राइंग कर लिया, कुकिंग अ मील इज अ गुड एक्सरसाइज, doing yoga and meditation is a very good exercise. When you can't change the situation, you just have to adjust with that, then you should go for that. टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. कई बार हम नेल्स वगैरह पेंट करते हैं और ये सब करते हैं. कई बार मसाज करते हैं. व्हेन यू गो आउट फॉर मसाज एंड ऑल, यू फील सो रिलैक्स्ड एंड यू जस्ट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द सिचुएशन. सिंस यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, सो यू कैन डाइवर्ट द सिचुएशन. सो आप इसका एक क्लिक ले सकते हैं या later on we can share the PPT as well if you want that. So these are the coping mechanisms. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स. तो रीजंस
for stress in students. Procrastination is the biggest issue in students. We just procrastinate things, और फिर वो जब इतनी pile up हो जाती हैं, like ये test है, I have to prepare for this test and I'm not doing it right now and I just procrastinate it. तो इतना pile up हो जाता है कि later on वो stress का reason बनता है. करियर रिलेटेड टेंशन्स तो होती ही हैं स्टूडेंट्स को. वो एक स्पेसिफिक एम बनाते हैं, लाइक आई वांट टू बी अ इंजीनियर और अ डॉक्टर, एंड दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट रादर देन इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देंगे, रादर देन creating a small milestone or small targets. They just focus on that कि हाँ मैं इंजीनियर कब बनूंगा, मैं डॉक्टर कब बनूंगा, rather than focusing on small steps. They keep on thinking about that. और obviously 10th के बाद में मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, 12th के बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना है, sometimes it's not clear to students. That's why they get stressed out. Distractions like relationship का हुआ, substance abuse हुआ, peer pressure हुआ, तो ये सारे भी reasons बनते हैं student stress के लिए. Parental pressure, of course it is there. तुम्हारा ब्रदर डॉक्टर है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते हो, तुम्हारी सिस्टर ने ऐसा किया. पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेसिटी समझ के देन दे शुड ट्राई टू टॉक अबाउट द करियर या फिर उसकी पोटेंशियल के हिसाब से बात करना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होता है. दे जस्ट इमिटेट के तुम्हारे कजन ऐसा कर चुके हैं, तो द कंपैरिजन इज देयर, सो दैट प्रेशर इज आल्सो देयर ऑन स्टूडेंट्स. So later on we will also जब क्वेश्चन आंसर राउंड होएगा तो आप स्पेसिफिक स्ट्रेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में और आंसर्स वगैरह करेंगे और we will try to sort it out. अब हम जो छोटे मोटे से जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं कि क्या स्टेप्स लेके हम बच्चों के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. एक तो टाइम मैनेजमेंट, जो प्रोक्रेस्टिनेशन था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाएं. टाइम मैनेजमेंट फॉर देयर स्टडीज, टाइम मैनेजमेंट फॉर देयर एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट फॉर देयर ईटिंग, सब चीजों के लिए, फॉर स्लीपिंग, एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर स्टडीज. तो जब ये टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट रहेगा तो दे विल गेट गुड हेल्थ, they'll get enough time for their exercise, they'll get enough time for their entertainment as well. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है सुबह से शाम तक बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है. हर चीज के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है. सेट माइलस्टोन्स, जैसा कि मैंने कहा कि करियर रिलेटेड टेंशन होती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक माइलस्टोन सेट करें, और छोटे छोटे. फॉर अ वीक आई विल डू दिस मच एंड आई विल नॉट स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट. मेरा टारगेट सिर्फ इस वीक के लिए है एंड आई विल नॉट थिंक बियॉन्ड दैट. मेरा टारगेट इस मंथ के लिए, देन सेट इट फॉर अ मंथ. मेरा टारगेट इस मंथ के लिए है, आई विल नॉट थिंक एनीथिंग एल्स. तो जो आपका बिगेस्ट गोल है उसके जैसे माइलस्टोन्स होंगे तो आप वो बिगेस्ट गोल को अचीव भी कर पाएंगे और स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं होंगे. हम बिगेस्ट गोल को पूरे टाइम देखते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं अगर हम उस पे फोकस करेंगे तो विल बी मोर फोकस्ड एंड विल बी मोर रिलैक्स्ड and will be able to achieve that comfortably. Deep breathing. Deep breathing is a very effective way. जहाँ कहीं भी एग्जाम्स के टाइम में और इवन फॉर इंटरव्यू और एनीवेयर, इफ यू फील स्ट्रेस्ड आउट, यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ and exhale from your mouth. It will give you immediate relief. So this is really important. Otherwise we often suggest मेरे clients को कि deep breathing या फिर breathing exercises work as a medicine. जिन भी लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं, वी ऑलवेज प्रेफर कि वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें. प्राणायाम से सभी अवेयर हैं. डीप ब्रीदिंग, फिर अनुलोम विलोम एंड ओम की चैंटिंग, एंड इफ दे कैन डू मेडिटेशन, दैट इज रियली गुड. Positive affirmations. Positive affirmations can do wonders in your life. तो क्या है ये पॉजिटिव अफर्मेशंस? पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें खुद के लिए देनी होती हैं. आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. जिन बच्चों को एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस होता है, they have to look into the mirror and say it to yourself again and again. I am a confident person. I can do it. I will do it. So अगर आप ये चीज रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? योर सबकॉन्शियस माइंड विल कैच इट
Your subconscious mind will catch it and it will respond at the time of your examination. ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें नहीं नहीं बोलना है आपको कि मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊं, मैं डरूंगा नहीं, बजाय ये बोलने के आपको ये बोलना आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एक तो उसमें नहीं नहीं आना चाहिए, दूसरा उसमें फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। फ्यूचर टेंस पर्सन एग्जाम, फ्यूचर टेंस आने पे कई बार अफर्मेशन पोस्टपोन होती रहती हैं। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है अफर्मेशन का? व्हेन यू आर अबाउट टू फॉल asleep, this is the best time when you give affirmation to your subconscious mind. It will work 6 to 7 hours. Or next कौन सा है? When you get up early in the morning, the first thought should be I'm a confident person, I will do very well in my exam. वापस will आया, that I need to correct, I am doing very well और I will achieve, तब आप कह सकते हैं I will achieve, I am doing very well। प्रेजेंट से कनेक्ट करते हुए आप फ्यूचर टेंस पे ले जा सकते हैं, बट ट्राई टू गिव अफर्मेशन इन प्रेजेंट टेंस ताकि वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ब्लाइंड होता है, द वे यू प्रेजेंट, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको कॉपी कर लेता है। इसीलिए when you are about to fall asleep, at that time you should always have positive affirmation। मम्मा पापा वगैरह भी हमारे हमेशा कहते थे कि कुछ भगवान का ध्यान करके सो। why they used to say this thing? just because of subconscious mind। have you ever realized कि आप किसी टेंशन के साथ में सोए हैं, ऑफिस स्ट्रेस के साथ में, you went off to sleep and for 6 to 7 hours you were restless just because of your subconscious mind, क्योंकि आपने वही ट्रांसफर करके सोए आफ्टर 6-7 hours। आपको रियलाइज हुआ कि वही टेंशन चल रही थी जिस टेंशन के साथ में मैं सोई थी या सोया था, राइट? So you need to be very careful about affirmations। even parents should be very careful। parents को affirmation बच्चों को हमेशा पॉजिटिव देनी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बजाय इसके ये कहने कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो पढ़ाई कर नहीं रहे हो, वेस्ट होएगा, मार्क्स आएंगे नहीं तुम्हारे। बजाय इसके ये कहिए आप में बहुत पोटेंशियल है, should use your potential positively। So my next step is relaxation therapy. Before that, we can take question answer. So I'll just stop sharing my slide now and we'll get back to the meeting. Yes, हम पहले question answer round लेते हैं, then we'll do a relaxation therapy जिससे हम anxiety को subside कर सकते हैं, any kind of anxiety। So I would request you to just open your video and just ask me the questions if you want to ask। Yes, if anybody have any questions, they can just unmute themselves and ask. In the meantime, Meenakshi ji, I had one question. Like you talked Yeah. about so many breathing techniques and pranayams. These are something which we know somewhere Mm-hmm. in our mind that we Mm-hmm. should do all this, but still we are not able to implement it. So, Right. what should we do for a routine implementation of all these activities and a positive mindset? Yeah, very good question। timetable that as I said, timetable is really an essential part of students life। So fixed timetable होना चाहिए कि early in the morning when I got up, within 15 minutes I'll just do my brushing and all, and I should sit and do the breathing exercises first, then I'll have my breakfast, milk or anything else। so that should be there। breathing exercises के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप early in the morning empty stomach perform करें उसको with om chanting, or if you believe in something else, you should do with that। Yes, anybody if they have any questions, they can just unmute and ask. And Meenakshi ji, there are few people who face anger a lot. They get angry in small things, right? So how can they control their anger? Would meditation also help in that? Definitely, meditation will definitely help in that। But what is anger actually? We need to understand that point also। Anger is our pent up emotions. So we need to vent out those emotions first। So when I'll do the anxiety related relaxation therapy, please follow that also for anger management। I'll do that at last। First, I was waiting for the questions if
they have any? Otherwise, I'll go for the relaxation therapy. Then we can just share our experiences related to that therapy. Sure, sure. Meenakshi ji, Yes, please. now I'm seeing students having this kind of a big issue of mobile, and there's a lot of distraction in this. And now even grandchildren को देखो तो वो बोले अच्छा टीवी के सामने वो खाना खिला रहे हैं, ये हो रहे हैं. In our times this was not so करके, but it is sometimes really leading to a very awkward position. अब जब तक उसको वो मोबाइल नहीं मिले तो he will not eat. ये भी एक बड़ा causing too much of attention sort of a thing nowadays. Right. How to cope up this? हाँ, तो सबसे जरूरी है कि हमें जब बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली 5 years तक में हम जो बच्चों की हैबिट डाल देंगे वो बहुत फर्म हो जाएगी. हैव यू एवर रियलाइज्ड कि हमें उठ के ब्रशिंग के लिए कहना नहीं पड़ता है. वेरी स्पॉन्टेनियसली वी गो टू द बाथरूम एंड वी स्टार्ट ब्रशिंग, राइट? So the same thing goes with children. We have inculcated such kind of habits in children. So we need to change the habit. अगर आपने पहले देखा होगा कि कुछ टॉय लेके पहले मदर्स जब बच्चों को फीड करती थी तो कुछ टॉय दे देती थी, जैसे कोई बोल दे दिया, कोई स्पून दे दिया, तो मोटर स्किल्स भी डेवलप होती थी बच्चों की. एंड दे यूज्ड टू प्ले विद दोस थिंग्स और मदर फटाफट फीड करा देती थी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को शुरू से ही व्हेन दे आर टिल 5 years old तब तक कभी भी मोबाइल के आगे खाना खाने की हैबिट ना डालें. Once if we inculcate that habit, it's really difficult to change that habit. उसको चेंज करने के लिए भी यही होगा, कंडीशनिंग यही होगी कि आप उसको रिप्लेस करें विद सम अदर थिंग. कुछ मोटर स्किल्स रिलेटेड कुछ टॉयज दें, कुछ स्क्वीज करने वाली बॉल्स दें, जैसे छोटे बच्चों को जिस बॉल को वो स्क्वीज कर सकें. कुछ ऐसा पेपर दें जिसको वो रैप कर सकें और इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हुए. या फिर आप स्टोरी बुक्स रख सकते हैं. स्टोरी बुक्स में जैसे पिक्चर्स देखते हुए बच्चे आराम से खाना खा लें. लेकिन आपको मोबाइल्स वगैरह अवे रखना होगा कुछ टाइम के लिए बच्चे से. इनके लिए तो वो अपोज करेंगे कि नो आई वोंट हैव माय फूड, बट फॉर सम टाइम यू हैव टू डू दैट. ये एफर्ट्स डालने के बाद, क्योंकि मदर्स को एफर्ट्स तो डालने ही पड़ रहे हैं, वो टाइम मदर्स को देना ही पड़ रहा है बच्चे को खाना खिलाने के लिए, तो बेटर यू शुड start doing some activities. One activity I remember with my daughter I used to do when she was in nursery. मैं उसे कीपैड के सामने ले जाती थी and I used to ask her कि where is W, where is E, and she used to show me that and I used to feed her. This really a nice activity. Until 7 years, you don't have to tell your child that sit, I'll make you study. आप बहुत ही अच्छे से प्ले वे मेथड में बच्चे को पढ़ा सकते हैं. लाइक लेट्स प्ले अ गेम. हम दोनों गेम खेलते हैं. 2+2. ओ आई डोंट नो व्हाट इज दैट, कैन यू काउंट इट एंड टेल मी एंड यू विल गेट पॉइंट. तो आप अगर बच्चे को पॉइंट देते हैं तो ही विल गेट मोटिवेटेड. और इस तरीके से आप गेम में प्ले वे मेथड में बच्चे को पढ़ा सकते हैं. तो टिल 10 years you don't have to tell your child that come you have to study, you have to sit and write. You can do it very easily. Let them write on the floor, let them write on the boards, let them write on the doors. इस तरीके से chalk दे दीजिए. Let them write on the sand and just make them study in this way. Quite interesting because parents खुद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं अभी आजकल तो बड़ा चक्कर हो रहा है. Exactly. So we बड़ा need तलब है. timetable for ourselves also, that this is our children's time and we can't see the mobile. This is really important because they will imitate us. रोज दिन में 4 बार हो. अब शाम में ज्यादा हो गया. Yes, any other questions or we can go for our relaxation therapy? मीनाक्षी जी, Yes. जैसे अभी आपने बच्चों के लिए बताया तो उसी तरह से जब यूथ होने के बाद में पेरेंट्स किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब बड़े होने के बाद में, राइट? हाँ, राइट. बड़े होने के बाद में जैसा कि मैंने अफर्मेशंस के बारे में बात करी, आप सबसे अच्छी चीज अपने बच्चे के लिए दे सकते हैं अफर्मेशंस. कि आप दिन में एक बार
भले ही बच्चा अच्छा कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसकी पॉजिटिव चीज, हर बच्चे में स्ट्रेंथ है। जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो अपने बच्चों की बहुत सारी वीकनेसेस बताते हैं। फिर मैं जब उनसे स्ट्रेंथ्स पूछती हूँ, तो वो एक स्ट्रेंथ, और जब मैं उस बच्चे से बात, मैं उनको 10 स्ट्रेंथ्स और बता पाती हूँ उस बच्चे की, कि ये 10 स्ट्रेंथ्स और हैं। हमें स्ट्रेंथ से ही बच्चे की नेगेटिव चीज को दबाना होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अप्रिशिएशन एक तरीके से थेरेपी की तरह काम करती है। वी यूज इट एज अ थेरेपी। अप्रिशिएट योर चाइल्ड। जस्ट से, आपको कुछ भी नहीं करना है, बच्चे को 10th में अच्छा परफॉर्म करवाना है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट हैंड, बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू हैव मच पोटेंशियल, आप थोड़ा और करो, बहुत अच्छा कर पाओगे। rather than saying तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नंबर नहीं आने वाले हैं। आपको सिर्फ अफर्मेशंस देनी है बच्चे को अप्रिशिएशन के साथ। अप्रिशिएशन हर एज में वर्क करती है, हर एज में। एट माई एज, एट योर एज, हम कोई भी काम करते हैं, इफ यू विल अप्रिशिएट मी, वाह, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जब हमें मोटिवेशन मिलता है, तो बच्चे को कितना मोटिवेशन मिलता होगा। विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई चाइल्डहुड, जो कि मैं अक्सर वर्कशॉप्स में बताती हूँ लोगों को। I was very bad in drawing, and my mama was excellent in drawing, and she used to draw for me. और जब drawing teacher देखती थी, तो she used to come to know कि ये तो आपका draw किया हुआ नहीं है। And I used to hate drawing class and everything. धीरे धीरे मम्मा ने मुझे मोटिवेट करना स्टार्ट किया। I used to draw little bit. मम्मा ने मुझे क्या ड्रॉ किया है, एंड पता नहीं क्यों वो चीज इतनी स्ट्राइक करती थी। यू वोंट बिलीव, मैंने 10 to 15 years बैक आई हेल्ड माय एग्जीबिशन। मैं पेंटिंग्स करने लग गई थी। द चाइल्ड हु यूज्ड टू हेट ड्राइंग, उसने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई। तो इतना इम्पैक्ट करती है अप्रिसिएशन बच्चे पे। और बहुत इजी हो जाता है आपका टास्क भी, अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर लेते हो तो। Very true, very true. So, Meenakshi ji, we have one more question from Aditi. How children should get their parents into affirmation? How children, sorry, can you please repeat the question? How children should get their parents into affirmation and motivation? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को कैसे लाया जा सकता है। ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है अफर्मेशन की, कि व्हेन द चिल्ड्रन आर डूइंग वेल। लाइक मैंने अपनी डॉटर के साथ में एक चीज करी थी। 9th स्टैंडर्ड शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। जब हम कंपेयर करते हैं बच्चे को, एक बार आपने ऐसा एग्जांपल देखा होगा कि व्हेन वी कंपेयर चिल्ड्रन टू सम अदर चिल्ड्रन, तो बच्चा तुरंत कहता है आप भी तो वैसी मम्मा नहीं हो। तो इन दिस वे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर अफर्मेशन पेरेंट्स के लिए काम कर रही हैं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो वो पेरेंट्स कर रहे हैं या जो बच्चे अफर्मेशंस दे रहे हैं, वो इस चीज के लिए अपने पेरेंट्स को भी एक बार अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। इस अफर्मेशन से हमें फर्क पड़ा था, आप भी हमारे लिए ये चीज करके देखिए, अप्रिशिएशन करके देखिए, उससे मोटिवेशन मिलेगा एक दूसरे को। और यूथ के लिए, जैसे स्पेशली फीमेल्स के मामले में, उनको सोसाइटी का भी जैसे उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि पेरेंट्स से हटके भी उनको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि एजुकेशन की तरफ या उनकी जो उनको प्रमोट करने की तरफ क्या एक्सपेक्टेशन सोसाइटी सोसाइटी रखती का है। और पीयर प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है सर इस एज में। पीयर प्रेशर एक होता है कि जो उधर उनके को खींचता है और हम घर के संस्कार इधर खींचते हैं, तो एक क्लैश होता है बीच में। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप ऐसा क्लैश महसूस करें कि बच्चा ज्यादा पीयर प्रेशर की तरफ जा रहा है या सोसाइटी की तरफ ज्यादा वो अट्रैक्टेड है और हमें अपनी तरफ खींचना है, तो एक रूल सेट करना होता है, हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है कि ठीक है, आई कांट सेंड यू आउट, बट बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो जाना है, पार्टीज वगैरह होनी है, मैं तो जाऊंगा ही बाहर। तो हमें फिर एक बीच का रास्ता, एक रूल सेट करना होता है कि ठीक है, अप टू दिस टाइम यू हैव टू बी बैक। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है, क्योंकि हमारे में जनरेशन गैप होता है। हमारे से पेरेंट्स में और हमें जनरेशन गैप था, हमसे और अब बच्चों में एक जनरेशन गैप है।
तो उसका बीच का रास्ता निकालना इसलिए जरूरी है, नहीं तो बच्चे हमसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अगर हम सोच टोटली अलग रखेंगे, अगर उनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी। तो वो एक रूल सेट करना बहुत जरूरी है और बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। यू जस्ट हैव टू टेल योर चाइल्ड दैट आई ट्रस्ट यू अ लॉट। वो कुछ गलत भी करेगा तो उसको वो चीज जरूर स्ट्राइक करेगी कि यस माय मम्मा ट्रस्ट मी अ लॉट। मैंने ये से आफ्टर मैरिज एजुकेशन है वो फीमेल्स की तो स्पेशली इफेक्ट हो जाती है, से ट्रेंड किया जा सकता है। मैं इस चीज पे पूरी कन्विंस नहीं हूँ कि इंटरप्ट हो ही जाती हैं। ये आजकल पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप बेबी बर्थ को डिले कर सकते हो आफ्टर मैरिज, अगर आपके पास में वो टाइम हो तो। और बहुत जरूरी है कि फैमिली कोऑपरेट करे। फैमिली अगर एजुकेटेड है तो वो कभी भी अब के टाइम में, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि काफी हैं शादी के बाद में भी अपना जॉब वॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, कुछ लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, अगर आप उनको मैनेज करके और फिर साथ में जॉब कर रहे हैं, दैट इज अप टू योर चॉइस। अदरवाइज अब काफी फर्म है लड़कियां, हम इसी एज तक शादी करेंगे। पहले आपने नोटिस किया होगा, रिजेक्ट करने का अधिकार भी सिर्फ लड़कों के पास होता, लड़कों वालों ने मना कर दिया शादी नहीं हो सकती। अब दोनों की रजामंदी से ही शादी होती है। अब लड़कियां कहती हैं हम इस एज तक तो शादी ही नहीं करेंगी जब तक हमारे बैंक में इतना बैलेंस ना हो जाए। तो वो बहुत डिटेल्स, और जनरेशन देखा जाए तो वो कोऑपरेटिव है तो बिल्कुल एजुकेशन बाद में भी कंटिन्यू की जा सकती है, और किसी भी एज में कंटिन्यू की जा सकती है। I think we should यस move forward now, Meenakshi ji. यस। तो मैं एक रिलैक्सेशन थेरेपी करना चाहती हूँ आप सभी के साथ में, कि कोई भी पेंट अप इमोशन हो, एंजाइटी हो, और इसके बाद में आई वुड लाइक एवरीवन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, राइट? मैम एक एडिक्शन के बारे में और बता दो, यूथ उस तरफ काफी जा रहा है। राइट सर, यू आर वेरी राइट। ये एक सबसे बड़ा फियर है, हम रूल तो बना दें, सारी चीज कर ले, लेकिन अगर उस तरफ जा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंस आपको दिखाना बहुत जरूरी है। कि आप एक काउंसलिंग जरूर करिए अपने बच्चे की। जैसे ही बच्चा 8 टू 9 स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है, 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड के बिगनिंग से ही आपको ये काउंसलिंग जरूर करनी है। आपको सबसे पहले, हम एडिक्शन में सबसे बड़ी चीज यही करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस हो सकती है इफ यू गेट इनटू दिस। ये आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर इससे निकल पाना मुश्किल, लूज कर जाओगे। हमारे हाथ में सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग, और काउंसलिंग करने के बाद में यू हैव टू गिव दैट ट्रस्ट टू योर चाइल्ड कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम ये चीज नहीं करोगे। आस्क योर चाइल्ड नॉट टू ट्राई दोज थिंग्स। ट्राई करने के पहले आपको उसे सोचना है। वंस यू स्टार्ट ट्राइंग दोज थिंग्स, आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व होते जाएंगे, उसके बाद फिर आपका उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको काउंसलिंग स्टार्ट करनी है 8 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हो, आई ट्रस्ट यू। और एक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, बच्चा किस वक्त आ रहा है, किस हालत में आया, ये सारी ऑब्जर्वेशन इनिशियल स्टेज पे बहुत जरूरी है। तो किस टाइम पे बच्चा आपका जा रहा है, पार्टी में पहुंचा है, किन फ्रेंड्स के साथ में, यू शुड नो ऑल द फ्रेंड्स एटलीस्ट। उनकी ममाज वगैरह से भी आपका कांटेक्ट है, तो दैट्स रियली नाइस। एंड कीप काउंसलिंग योर चाइल्ड, दिस इज द ओनली वे। हमने काफी बड़ी बड़ी चीजों में देखा है, जब पेरेंट्स कहते हैं बच्चा सुनता नहीं है, तो हमने एक चीज सजेस्ट करी कि ठीक है, सुनता नहीं है, आपको भी ये पता है कि सुनेगा नहीं, राइट? सो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जस्ट टेल योर चाइल्ड डू दिस, लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू जस्ट हैव टू प्रे गॉड, या फिर जो भी चीज है ये आप बोलो, एंड डोंट लुक बैक whether the child is following or not. आप just move कर जाओ उस जगह से, just give your suggestion. After a certain age, in their teenage, आप सजेशन दे सकते हैं। पेरेंट्स थोप नहीं सकते उन पे कोई भी चीज, आप सजेशन दे के आप मूव कर जाइए वहां से। वन डे द चाइल्ड विल स्टार्ट डूइंग दैट। ऐसा हुआ है कितने ही बच्चों के केसेस में कि पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी, नहीं सुधरा बच्चा,
लेकिन वो जो काउंसलिंग का इफेक्ट था वो बच्चे को लेटर ऑन जब वो हॉस्टल में पहुंचा तब रियलाइज किया पेरेंट्स ने कि हाँ अब मेरी उन कही हुई बातों को वो फॉलो कर रहा है. कीप योर कबर्ड क्लीन. द कबर्ड वाज नेवर क्लीन when they were with their parents, but when they went to the hostel they saw the cupboard is absolutely clean, so the impact was there. We have one more question in chat box. Yes. Does sarcasm in children is too a part of stress? At time it's been observed kids reply to simple questions sarcastically. How do they learn it? We need to observe that thing. Do we talk in that way? We need to check ourselves. They learn, sometimes they learn group also. I don't blame parents completely, but we need to observe first कि उसका रूट कहाँ है. क्या किसी ऐसे फ्रेंड के साथ में जहां से वो आ रहा है, या फिर हम पेरेंट्स में से कहीं पे कोई गलती हुई है जहां पे हमने इस तरीके से बात करी. द वे वी टॉक, आई हैव रियलाइज्ड विद माय चिल्ड्रन आल्सो, द वे वी टॉक दे रिप्लाई इन द सेम मैनर. सो ये चीज होती है. लेकिन पीयर ग्रुप से भी बच्चा सीखता है. बच्चा बहुत सारी जगहों से सीखता है, अपनी टीचर से भी सीखता है. आई हैव रियलाइज्ड इन सेकंड स्टैंडर्ड व्हेन माय डॉटर very useful for the children. यस. क्या हो गया मालूम है? On that day was holiday for our school and admin है ना हमारा इसका apologies. Yes, there was any question or interruption in between? It was an interruption. Oh, fine. So हमें ये चीज जानने की जरूरत है कि वो पीयर ग्रुप से आ रहा है, हमसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. करेक्ट है immediately over. Replace the way I told you we should change their belief in same manner. Just cut their sentence and replace it with the positive one. Okay. Yes, any other question? Yeah, that was the last question, I guess. Yes. Yeah. We can go move ahead with our therapy. Yeah, Right? yeah. So everyone sit comfortably. आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाइए. अगर आपको रेस्ट लेना है, बैक रेस्ट चाहिए तो आप बैक रेस्ट ले सकते हैं. इफ यू वांट टू लाई डाउन, प्रोवाइडेड यू डोंट स्लीप, यू कैन लाई डाउन आल्सो, बट सिट कंफर्टेबली एंड टेक अ डीप ब्रेथ. आपको 3 लंबी सांसें लेनी है. से आपके कोई डीप रूटेड जो एंजाइटी है जिसको आप जिससे आप कर रहे हैं उसको हील करने की कोशिश करेंगे. राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ. 3 डीप ब्रेथ्स. जैसे ही आप सांसें ले रहे हैं, अपनी सांस के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हैं और नेगेटिव इमोशंस कोई भी रहे हैं तो उसको आप बाहर निकाल रहे हैं. टेक आउट ऑल द नेगेटिव इमोशंस आउट. आप पीठ से अप करना चालू करिए. आपकी आईज हैं क्लोज्ड एंड स्टार्ट फीलिंग योर फीट नाउ. पाँव पे जिस पे हमारा सबसे ज्यादा बोझा होता है वहां से आप रिलैक्सेशन को फील करना स्टार्ट करिए. जैसे पाँव आपके बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं और रिलैक्सेशन वहां से स्टार्ट हो रही है. इट कमिंग अपवर्ड्स टू योर थाइज, टू योर स्टमक. रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, काम. यू आर फीलिंग पीस इनसाइड योरसेल्फ. शोल्डर्स, जो कि कंधे हमारे जो काफी बोझा लिए रहते हैं, उन एकदम हल्के होते जा रहे हैं. थ्रोट से होते हुए अब आप अपने फेस की तरफ गए और पूरे माइंड तक में ये रिलैक्सेशन स्प्रेड हो चुकी है. यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली काम नाउ.
कामनेस को फील करिए। अब महसूस करिए कि जिस जगह आपने सहारा लिया हुआ है, चेयर का, बेड का, कुशन का, वो एक ब्लॉटिंग पेपर है और आपके सारे नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस को वो absorb कर रहा है। फील इट एज अ ब्लॉटिंग पेपर और वो अब्सॉर्ब कर रहा है आपकी सारी थकान को, सारे दुखों को जो अंदर आपने गहरे बैठा रखे, अब्सॉर्ब कर रहा है। Now I will take you to a beautiful journey. Just concentrate on this journey. आप धीरे धीरे उस एंजाइटी को इमेजिन करिए, उस दुख को इमेजिन करिए, या उस नेगेटिव फीलिंग को, फोबिया को, स्ट्रेस को जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रही हैं। वन थिंग जिससे आपको उबरने में बहुत मेहनत लग रही है, आप चाहती हैं उबरना पर उबर नहीं पा रही हैं, उसको आप इमेजिन करिए। इमेजिन इट वेरी डीपली। अब आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड टू स्कैन योर बॉडी। आपके सबकॉन्शियस दुख ने, उस फीलिंग ने, उस एंजाइटी ने, उस नेगेटिव इमोशन ने किस जगह घर किया है, अपनी बॉडी को स्कैन करके एक जगह उसे फिक्स करके देखिए। हो सकता है वो स्टमक में हो सकता है वो चेस्ट में हो। स्कैन करिए, बॉडी आपकी बताएगी कि वो नेगेटिव इमोशन किस जगह है। स्कैन करने के बाद में अब उस इमोशन को आपको आकार देना है। बड़ा है, छोटा है, गोल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, आकार दीजिए। कलर दीजिए उसे, ग्रीन है, येलो है, कौन सा कलर है। अब दीजिए हल्का है या भारी है। अब आप एग्जैक्ट उस इमोशन को पकड़ चुके हैं, आकार में, रंग में, वेट में भी। अब अगर वो भारी है, टेल दैट इमोशन, I don't want you anymore now. Go out from my body. अगर वो भारी है तो वो रोल डाउन होना स्टार्ट हो रहा है आपके पाँव की तरफ से। It will roll down towards down to the earth. बहुत दूर, दरवाजे से दूर आप उसको रोल होते हुए और जाते हुए देख रहे हैं, सड़क पे बहुत दूर। You can't see it anymore. आप उस इमोशन को अब नहीं देख पा रहे हैं, आपकी बॉडी से हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। अगर वो हल्का था, अगर आपने जज करते हुए उसे हल्का पाया, तो वो फेदर की तरह धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है, अबाव एंड अबाव इन द स्काई, और आप बहुत दूर उससे स्काई में देख पा रहे हैं। अब वो आपको दिखना बंद हो गया, एक लाइट फेदर की तरह वो यू कांट सी इट एनीमोर। वो इमोशन निकल चुका है। नाउ देयर इज अ वैक्यूम बिकॉज दैट हैज गॉन आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो वहां एक एम्प्टी स्पेस है, इस स्पेस को हमें फिल करना है। फिल इट विद जॉय, हैप्पीनेस, with your favorite food, with your favorite color, with your favorite music. This is your own space now. आप जब भी कभी स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप 2 मिनट आंखें बंद करेंगे, आप इसी जगह फिर से पहुंच जाएंगे। ये आपने अपना स्पेस बना लिया, a powerful space of happiness, joy, lots of colors. रेनबो के सारे कलर्स हैं, सारी खुशियां हैं इसमें। आप उस खुशी को अब महसूस कर पा रहे हैं। यू आर वेरी हैप्पी नाउ, एक्सट्रीमली हैप्पी। ऐसी हैप्पीनेस जो आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं करी। आपकी रूह में, every cell your body is enlightened now, and you feel that happiness and brightness in your body. This space is yours now. जब भी कभी आप याद करेंगे, whenever you are stressed out, you will be at this position ever again.
धीरे धीरे अब हम वापस आते हैं कॉन्शियसनेस की तरफ। उस हैप्पीनेस, उस ब्राइटनेस के साथ हम लौट रहे हैं। रब योर palms and put it on your eyes. और जब आप आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियों के आगे आंखें खोलेंगे और बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट में टेक योर टाइम। और जब आप वापस आते हैं एंड यू फील रिलैक्स्ड, प्लीज गेट बैक टू मी। टेक योर टाइम। Yes, Arushi. Yes, Meenakshi ji, We'll start it from felt you really only. good. Yeah, it felt really good, and I'm actually feeling a positive energy inside me. It feels rejuvenating my entire body, and it feels little fresh now. It feels like I have a fresh mind to do any kind of work, even if I plan to now. So that is something I felt really good, and this is something I even felt I can do it when I have lot of work. I can just take out 5 to 10 minutes out of that and practice this and then get back to my work, which would actually help me more focused towards my work. That's really nice that you get this. Okay, could you imagine your stress or specific anxiety at that time? Yes, yes. Did So you first target thought, that? yeah, so the first thought which comes is the thing that is going continuously into our mind. Right. The stress that we are thinking about from maybe from morning or from so many days. And that thing I felt ki this is something I'm thinking unnecessarily. This is something that I should actually remove from my mind. That's really nice. Thank you for your feedback, Arushi. And you can do it twice in a day. अगर आप ज़्यादा stressed out हैं, for students I would recommend कि जब भी आपका एग्जाम का टाइम आए या ऐसा कुछ भी स्ट्रेस का पीरियड रहे, तो you should do twice in a day. Or you can do it for 2 to 3 minutes. You can imagine the same feeling. क्योंकि आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Once you have done it, it is stored in your subconscious mind, so you can recall it at any time. Yeah, some other experiences, please. Or I should start one by one then. Yes, please जिसका भी नाम unmute first है ना, yourself. I should start like that. I also. See, we are some people are mentioning it on chat box. Like Yeah. Devesh Uncle mentioned, mind-boggling. Shankar Daima have mentioned the stressed out exercise. Um, was really fantastic. Enjoyed a lot. Arvind ji have Yeah, I can mentioned see that super now. mind Yeah. reaction. Anyone else who can just put on their video so that I can also see some faces? Yes, please unmute yourself and go ahead and talk about how you felt. Yeah, and please share your experiences. It will be really nice. Like peace of mind has come in. ऐसा लग रहा है. Thank you. Of course, I am in this kind of a fort. Normally, this is my stress reliever. Oh, that's really nice. हाँ, that is where करके फिर भी अभी वो सब वो बोल रहा था ये गेम में मैं बोला नहीं. Let me complete this. I will join later on. Thank you for that you spared your Yeah. time. Yes, anyone else? So I can cross question with someone, like if someone can start their video and share their experience. Aditi can do that. Aditi, please. Yeah. Yeah. Thanks, Aditi. Hi. It was very nice. Like I was in car, so it last वाला थोड़ा सा बच्चे आ गए थे तो I got disturbed. But मैं वापस से एक बार try करके धीरे धीरे I was like अब करूँगी धीरे. And मुझे एक और question था.
कि फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कोई चिल्ड्रंस लाइक पढ़ाई नहीं करते हैं और तो वो अपने दिमाग में वो चीज बैठ जाता है कि वो नहीं कर पा रहा है, वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, बट पता है कि हाँ वो कर ही कैन डू इट, लेकिन जब वो नहीं करता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि जब उसे टीचर ये चीज बोल रही है कि यू राइट और यू रीड दैट सेंटेंस समथिंग व्हाट, मतलब इट्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years. सो जब वो चीज वो नहीं कर पाता है तो मैं उससे ज्यादा मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ. वो तो इट्स लाइक उसको पता ही नहीं है स्ट्रेस क्या है, बट मैं इतनी स्ट्रेस आउट जाती हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा है, व्हाई ही इज नॉट रिप्लाइंग एंड ऑल. तो उस वक्त कैसे कोप अप करें? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन आदिति, क्योंकि पेरेंट्स का ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है कि जो हम ट्रांसफर करते हैं फिर बच्चे में. राइट नाउ इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेस, बट लेटर ऑन ही विल गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस कि हाँ मम्मा स्ट्रेस्ड आउट है एंड मम्मा फील्स दैट. आपको अपने अंदर भी यही अफर्मेशन देनी होगी बार बार. यू हैव टू CBT, जिसके बारे में मैंने बात करी थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एंड आई स्पोक अबाउट बिलीफ, राइट? तो देयर इज सम बिलीफ सिस्टम कि जो इतना गहरा घर कर लेता है हमारे अंदर कि उसको हमें चेंज करना होता है. हम 1-on-1 काउंसलिंग में क्लाइंट के बिलीफ सिस्टम को ही अटैक करते हैं सबसे ज्यादा कि दिस इज योर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड यू नीड टू चेंज दिस थिंग. सो एवरी टाइम व्हेन यू थिंक कि ये नहीं कर पा रहा है, यू हैव टू कट योर थॉट, रिप्लेस इट विथ ये बहुत अच्छा कर पा रहा है एंड ही विल डू इट. Every time Okay. you have to cut that thought. मतलब at that point only I have to cut that thought Cut कि it immediately. नहीं he is doing whether he is He doing or will do not, it. Yeah. मुझे है कि You have नहीं to he cut can and do you it have and to he believe. is doing. Yeah. He is तभी doing. मैंने वो affirmation of parents वाला question इसके लिए पूछा था because बच्चे को इतनी जरूरत नहीं है जितना पेरेंट्स को बच्चों के लिए पॉजिटिव होना और उनको I अप्रिशिएट got करने की जरूरत confused. है. Actually, I thought you must be तभी मैंने वो asking. yes that's why वो मैंने उल्टा I पूछा got कि चिल्ड्रन confused. कैसे चिल्ड्रन कैसे वो करें कि अपने पेरेंट्स को अफर्म करें. इसके लिए मैंने वो चीज क्वेश्चन पूछा था कि बिकॉज Right. वो उनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हम लोग उन पे जो भी डाल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या फिर Because it is इट्स coming in लाइक your कि belief थोड़ा system. Once हाइपर हो it रहे हैं. will, yes. Once he'll start doing that, your belief system will be so strong कि फिर तो वो करेगा तो भी you won't realize कि ये कर पा रहा है. So you need to change your belief Okay. system first. So you cut your thought. Okay. In every situation, we ask the client to cut your thought. Cut your thought and replace it with the positive one. Positive. ऐसा हर circumstances में आप कर सकते हो. ऐसा सिर्फ इस स्ट्रेस के लिए नहीं, आप हर स्ट्रेस के लिए कर सकते हो कि पूरे दिन में कई बार हमें 50 टाइम्स अपने नेगेटिव थॉट्स को कट करना पड़ता है. जब हमने रिसर्च करके देखा, हमारा एक नेगेटिव थॉट, सेम थॉट 50 टाइम्स चलता है फॉर एंटायर डे, एंड 50 टाइम्स वी हैव टू कट इट इनिशियली. तब फिर वो कम होते होते 40 पे पहुंचता है, देन इट गोज टू 10 और फिर वो डिसअपियर होने लग जाता है. धीरे धीरे इट बिकम्स अवर टेंडेंसी कि नाउ वी विल कट दैट एंड रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव वन. डोंट गो अहेड विद योर थॉट. या बट जब ऐसा सब कुछ सुनते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यस नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट, विल थिंक पॉजिटिव, बट व्हेन द सिचुएशन एक्चुअली कम्स तो वो सारा कुछ वाइप आउट हो जाता है एंड जस्ट नेगेटिव एनर्जी इतनी अंदर आ जाती है कि ही इज नॉट डूइंग व्हाट विल आई डू और ये वो, तो इट्स लाइक कि प्रेशर बहुत बन जाता है. Practice it. CBT, cognitive behavioral therapy, is all about practicing yourself. Yeah. Practice कि मुझे कितनी बार को ब्रेक करना है. Initially, I told you have to break it for 50 times at least in a day. So that's too much. और later on आपकी फिर वो tendency हो जाएगी. हाँ. Replace it with the positive one immediately. और हम क्या करते हैं, कोई आया, मैंने सोचा जैसे उसने मुझे डांटा, क्यों डांटा, क्या हुआ, मैं अब ऐसा करूंगी, एंड वी जस्ट कैरी ऑन विद द सेम थॉट फॉर हाफ एन आवर. कभी आपने रियलाइज किया है मैं हाफ एन आवर से सिर्फ यही सोच रही हूँ? हमें उसी को ब्रेक करना होता है विद इन 2-3 मिनट्स. आप उसे 2-3 मिनट्स में ब्रेक करके पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते थे, बट यू हैव हार्म्ड योरसेल्फ फॉर हाफ एन आवर. आप अगर उसको हाफ एन आवर तक पहुंचा दिया तो आपने खुद को मेंटली हार्म कर ली तरीके से. यू विल स्टार्ट हैविंग योर हेडेक या कोई ना कोई सिम्टम स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी शोज सिम्टम
whenever we are stressed out, या तो हमें sweating होती है या फिर हमें headaches होते हैं या कुछ ना कुछ होता है, body symptoms दिखाती है. Okay. So we need to cut that thought immediately, as soon as possible. Like कई बार हम justification में लग जाते हैं, नहीं मैं पूरा सोच लूँ ना तो I'll be content like that should not be there. We need to cut the thought. This is the best way. And cognitive behavioral therapy is so famous in psychology कि इस पे बहुत vast lecture हो सकता है. Like Okay. And it is actually difficult because वो situation में ऐसा करना, it was like really difficult. yes, but you Practice will become लो, हाँ. habitual to that. Later on, you will be Yeah. expert in that. Nice Yeah, to thank you see so you, much. Aditi. It's so nice. Thank you. Thank you for Yeah. sharing your thoughts. Yeah. Yes, any other questions? मैडम ऐसा कोई सर्वे भी आपने किया है कि अपनी सोसाइटी में ये जो आपके बड़े एनकरेजिंग और ये जो थॉट्स हैं ये मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब सोसाइटी में क्या ये जनरली लोग जानते हैं या काफी मतलब अवेयर नहीं है, काफी अनअवेयरनेस है? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है. जब मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं काउंसलर हूँ. बिफोर दिस एजुकेशन आई डिडंट नो सो मेनी गुड थिंग्स. ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हुई, ये थेरेपीज हैं. यू वोंट बिलीव कि कई बार जो क्लाइंट्स आते हैं उनको 50 मिनट्स के फर्स्ट सेशन में वो आराम आ जाता है और वो कहते हैं कि हम 3 साल से परेशान थे. तो आई ऑलवेज आस्क देम कि अगर आप 3 साल से परेशान थे तो आपने अपने फिजिशियन से भी नहीं पूछा कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है. मैं समझ सकती हूँ कि काउंसलर तक जाना बहुत ओपन नहीं है अभी भी. लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या काउंसलर ओपन नहीं है. लेकिन आप अपने फिजिशियन से तो बात करते, डॉक्टर से कहते कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए था. 3 सालों से जिस स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इन छोटी छोटी टेक्निक से. साइकोलॉजी में इतनी सारी टेक्निक्स हैं, हिप्नोसिस हैं, थेरेपीज हैं और इतनी सारी थेरेपीज का तो मैं भी आपको नाम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इतने सारे हेल्थ टूल्स हैं कि जो कि लोगों को नहीं पता है. आज इस वर्कशॉप से पहले भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शायद किसी ने नहीं सुनी होगी. और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, काफी सारी है. हिप्नोसिस है कि जब चीज क्योर ही नहीं हो पा रही है, आउट ऑफ द वे जा रही है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, हम हिप्नोसिस भी करते हैं. अब हिप्नोसिस को लेके भी लोगों को मिथ है कि वो जो सम्मोहन किया करते थे पहले, हिप्नोटाइज किया करते थे, इट इज दैट. नो, इट्स नॉट दैट. इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं, डेप्थ में ले जाके आपको सबकॉन्शियस माइंड टच करके देन वी गिव द सजेशन थेरेपी. सो बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों को और पूरा नॉलेज भी नहीं है. पर साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि जो आपकी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं. ये हमें शायद पता भी होता है, काफी चीजें हमें पता भी है कि टेंशन हो रही है तो टीवी देख लो, थोड़ी सी देर वो कर लो. लेकिन उसको रिप्लेस कैसे करना है, कितनी बार उसको कट करना है, क्या क्या चीजें इनएविटेबल है, मतलब जो नेचुरल हैं, अपरिहार्य हैं जिन्हें कहते हैं हिंदी में. काफी चीजें नेचुरल हैं, स्ट्रेस होना नेचुरल है, लेकिन उसको कितने ड्यूरेशन में आपको मैनेज करना है. आप टेंशन ले रहे हैं, आज आपने मुझे डांटा, मुझे टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसे हाफ एन आवर में सॉर्ट आउट करूं या पूरा एक दिन स्ट्रेस्ड आउट रहूं. तो मुझे उसका ड्यूरेशन कम करना है. तो ये नॉलेज सोसाइटी में वाकई बहुत कम है. ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हम काउंसलर के पास जाने से कतराते हैं कि पता नहीं काउंसलर के पास जा रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है. ऐसी बात नहीं है. व्हेन आई हैड माय इंटर्नशिप सेशन इन फोर्टिस, तो मैं साइकेट्रिस्ट के रूम में बैठती थी. आई हैव रियलाइज कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ मेडिसिन नहीं दे रहा है, वो कितनी अच्छी टूल्स दे रहा है उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. और काफी सारी चीजें हैं कि जो हमें हेल्थ सही समय पे ले लेनी चाहिए. तो वो चीज है. तो सोसाइटी अभी अनअवेयर है इस चीज को लेके. इस फील्ड का इंडिया में उतना नहीं रहा है. अब अपकमिंग हो रहे हैं सेशंस. कई मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो 3-3 साल से डिप्रेशन में, 14 साल से डिप्रेशन में, पर उन्होंने काउंसलिंग सेशंस ही ट्राई नहीं किए. मेडिसिन के साथ काउंसलिंग सेशंस बहुत अच्छे वर्क करते हैं. तो मेडिसिन आप क्लिनिकल रेकमेंड करते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट ही रेकमेंड कर सकते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपका डायग्नोसिस देते हैं, काउंसलर्स आपको सिर्फ
काउंसलिंग सेशंस देंगे, थेरेपी देंगे। मेरे पास जो भी क्लाइंट आएंगे उनका मैं डायग्नोसिस नहीं दे सकती हूँ, इवन दो आई नो कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है, फिर भी मैं उन्हें ये नहीं बोलूंगी कि आप डिप्रेशन के पेशेंट है। मैं सिर्फ अपनी थेरेपीज दूंगी और अपना काम करूंगी। ये टैग उन्हें सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देगा कि ही इज और शी इज इन डिप्रेशन एंड यू वर्क ऑन। सो दिस देयर। गीता साइकिल बुक है। गीता को यूएसए में साइकोलॉजिकल थेरेपीज के लिए यूज किया जा रहा है। गीता को कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है टू यू नो मेक देम अवेयर अबाउट देयर कर्मा, या फिर एक्सेप्टेंस जो थ्योरी है साइकोलॉजी की। यू वोंट बिलीव, जो ब्रह्मा कुमारी के काफी चीजें हैं, फॉरगिवनेस और वो सारी चीजें, वो सब साइकोलॉजी में है। गीता को यूएसए में बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है, इंडियन शायद उसकी वैल्यू भी नहीं कर रहे। साइकोलॉजिकल थेरेपीज के लिए यूज किया जा रहा है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है गीता को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। गीता पढ़ना अपने आप में एक साइकोलॉजी को मतलब बैलेंस आउट करना है, या फिर एक थेरेपी लेने तरीके से खुद को। इसीलिए जैसे जैसे आध्यात्म हट रहा है हमारे जीवन से, पहले जो अध्यात्म हुआ करता था ना, दादाजी बैठाया ही करते थे हनुमान चालीसा करनी है। सो अभी भी हम क्लाइंट्स में कई बार चैंटिंग को एक टूल बनाते हैं। हमें पहले असेस करना होता है कि क्लाइंट का बिलीफ भी है या नहीं। किसी का गॉड में बिलीफ ही नहीं और मैं उसे कहूँ तुम चैंटिंग करो तो इट वोंट वर्क फॉर हिम। तो जिनका बिलीफ है गॉड में, तो मैं चैंटिंग को एंजाइटी रिलीज के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कि चैंटिंग मतलब जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, किसी की कोई चैंटिंग है, किसी की अगर कंटिन्यूअस चैंटिंग कर रहे हैं तो डिप्रेशन लेवल में बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। सीवियर केसेस ऑफ एंजाइटी सिर्फ चैंटिंग से ठीक हुए हैं, अगर उनका बिलीफ है। घरों में कीर्तन करते रहे हैं, जैसे आधा घंटा लोग करते वो हैं, सारी चीजें ही कम हुई हैं, तभी तो डिप्रेशन ने जगह ली है। वरना इंडिया की हेरिटेज इतनी स्ट्रांग रही है कि काउंसलिंग घर में ही हो जाती थी। अब हम जैसे प्रोफेशनल्स बैठ गए हैं वही सेशंस लेके, राइट। मेडिसिन की कभी आवश्यकता नहीं रही पहले, मतलब इसी से हो जाता था। ऐसे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम जैसे काउंसलर्स ने इसीलिए जगह ली है क्योंकि घर से अध्यात्म हटा है। लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास में, क्योंकि सोसाइटी जब डिप्रेस्ड है और इसमें काउंसलर्स की आवश्यकता पड़ रही है। आई फील रियली गुड, आई फील रियली गुड। इसीलिए मैं विद्या एनजीओ के लिए काम करती हूँ। अंडर प्रिविलेज लोग हैं वहाँ पे, और औरतें जो काफी गरीब हैं, बच्चे जो स्लम एरिया से होते हैं, उन सब के लिए हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो उनको हाइजीन सिखाना, या फिर उनके मेंटल हेल्थ के लिए उनके पेरेंट्स के पास में पैसे भी नहीं है कि वो काउंसलर के पास जा सकें। तो उनमें से जो बच्चे डिप्रेशन के, एक इतना छोटा बच्चा डिप्रेशन में था कि उसके गरीब माँ बाप उसे कमरे में बंद करके नौकरी के लिए जाया करते थे। तो वो बच्चा इतना ज्यादा छोड़ दिए। तो इस तरीके के बच्चों पे हम लोग काम करते हैं। तो एक्सपोजर्स ज्यादा वहीं का है, एंड आई एम थैंकफुल टू विद्या और जो वहाँ पे जो भी सीनियर काउंसलर्स वगैरह हैं कि जिनकी गाइडेंस मुझे मिली। आई एम सो फॉर्चुनेट, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट इन दैट। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर। Yes, if I can solve any other questions, any other queries. Any questions, audience? क्वेश्चंस तो मन में ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे फर्स्ट आई शुड ट्राई 1 सेकंड। फर्स्ट आई शुड ट्राई लाइक कि पहले कैसे पॉजिटिविटी अपने अंदर लाए, एंड एट द पॉइंट 1-2 बार मैं प्रैक्टिस करके एंड देन फिर क्या चेंजेस आते हैं, देन आई विल कांटेक्ट यू। Sure. You are welcome. It was really very nice. Same here. जब भी मैं वर्कशॉप लेती हूँ तो मुझे भी सारे फेसेस देख के बहुत अच्छा लगता है। तभी वेबिनार्स में आई ऑलवेज आस्क पीपल के प्लीज वीडियोस ऑन करके लेट मी सी योर फेसेस आल्सो। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। फिजिकल वर्कशॉप्स में बहुत इंटरैक्टिव होती हैं वर्कशॉप्स,
और webinars में I have realized कि only I am talking, I am sharing my slides, Yeah, and no I'm one doing is. everything. In Yeah, between, yeah, I can't take any questions. Otherwise, in between also we can have interaction and we can solve queries. So yeah. that is there, but better than nothing. Yeah, because ये थोड़ा सा silent वाला था and ये सामने बैठी हुई it's like पटर पटर कर रही थी तो No problem. We should take it say hi. casual now. Everybody, hi. Hi, so sweet. It was very, very nice and very, what I say, relaxing. It was really very fantastic webinar. Thank you, Aditi. Thank you so much. Yeah. And the exercise is also very good. Thanks. होप आप सारे लोग इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करेंगे और बेनिफिट लेंगे। इस तरीके की काफी सारी एक्सरसाइजेज एंड थेरेपीज होती हैं कि जिसमें सीवियर केसेस में एंजाइटी और जो मेडिसिन भी चल रही होती है उसके साथ में इस तरीके के थेरेपीज और से क्लाइंट को काफी आराम आ जाता है। तो काफी स्पेशल टेक्निक्स हैं जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जो कि सोसाइटी को अभी नहीं पता है। हमें लगता है काउंसलर क्या कर देगी। कई क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है मुझसे कि मैम आप क्या कर दोगे, मेरी सिचुएशन तो वैसे ही रहने वाली है, मेरी प्रॉब्लम्स तो सारी वैसी ही हैं, आप क्या चेंज कर दोगे। मैंने कहा ये मैं आपको 3rd 4th सेशन के बाद बताऊंगी कि मैं आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं कर पाऊंगी लेकिन आपका परसेप्शन चेंज कर दूंगी उन्हीं सिचुएशन को देखकर। सो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट। मैंने एक चीज और फील की थी एक्सरसाइज के टाइम जब आपने बोला कि आपका जो भी टेंशन और जो भी चीज नेगेटिव चीज है जो आपको परेशान कर रही है वो आपके बॉडी के किस पार्ट में है। तो मैं बार बार जस्ट यही फील कर पा रही थी वो सिर्फ मेरे दिमाग में ही है और कहीं नहीं है एंड वही चीज प्रेशर कर रही है। तो उसका रिएक्शन भी होता होगा। देन यू मस्ट बी हैविंग हेडेक या इस टाइप के कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते होंगे या स्लीप डिप्राइव और हेडेक होना लाइक अलग अलग जगह आपको इमेजिन हुई है वो एग्जैक्ट है, वो सबकॉन्शियस माइंड ने बिल्कुल करेक्ट बताया है आपको बिकॉज उससे फिर फिजिकल या मेंटल जो चेंजेस हैं या सिम्टम्स हैं वो उसी एरिया में आपको फील होंगे जहाँ पे वो तभी मैं बार बार उसको मैं शिफ्ट करने की कोशिश कर रही थी। इट्स लाइक कि नहीं मेरे यहाँ नहीं है, मेरे हार्ट में है या फिर मेरे स्टमक में है, मैं कहीं और उसको ले रही थी लेकिन वो बार बार इट्स लाइक राउंड राउंड होके एंड मैंने उसको सर्कल शेप दिया था तो इट्स लाइक वो राउंड राउंड होके बार बार मेरे तो तभी वो वेंट आउट होएगी। इफ यू विल डू दिस एक्सरसाइज ओवर एंड ओवर तो आपको इम्पैक्ट लगेगा कि इट विल वेंट आउट। वेंट आउट होना हमारे इमोशंस का बहुत जरूरी है। देयर आर सो मेनी पेंट अप इमोशंस व्हिच कैन नॉट बी रिलीज। वो या तो मेडिटेशन में रिलीज होते हैं या इस तरीके की थेरेपीज में या हिप्नोसिस। सीवियर केसेस में हमें हिप्नोसिस पे जाना होता है where we can touch थेरेपी ओवर देयर, वहां पे हम सजेशन देते हैं। मैडम ये अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या इसी से रिलेट करता है कुछ साइकोलॉजी से? अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस है कि आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस होना या सारी चीजें होना। अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन हो सकता है। रीजन तो सर कुछ भी हो सकता है। कई पेशेंट्स के पास में बहुत छोटे रीजंस होते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। उनके पास सब कुछ होता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, अच्छी लाइफ भी होती है, फिर भी वो डिप्रेशन में होते हैं। तो रीजन तो स्ट्रेस का बहुत छोटा सा हो सकता है। जैसा कि आदिति जी ने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। 4 साल का बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको उससे भी स्ट्रेस हो सकता है। तो रीजन उनके लिए वो बहुत बड़ा रीजन है। तो रीजन तो हम किसी भी चीज को मान सकते हैं स्ट्रेस का। हमारा काम है क्योर करना और रीजन को रिजॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। आज आपने आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज सब सॉल्व कर दिए। और अगर हम सब ये इम्प्लीमेंट करें जो रिलैक्सेशन थेरेपी आज आपने हम सबको सिखाई तो आई एम प्रीटी श्योर ये काफ़ी चेंजेस लाएगी हमारी लाइफ में भी और हमारी थिंकिंग में भी और हमारे माइंडसेट में भी। तो काफ़ी चीज़ें आई एम श्योर आज के सेशन से हम लोग लेके जा रहे होंगे कि कैसे ये रिलैक्सेशन थेरेपी तो इवन आई फील कि हम सबको डेली बेसिस पे करना चाहिए जिससे हम अपने गोल्स और अपने करियर को लेके फोकस्ड रहे
और कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमें टेंशन नहीं दे पाए। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आज अपने टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी Thank you, चीज़ें Arushi. सिखाई। Thank you to all our lovely participants who were there today on Monday evening, and I'm pretty sure they took this time and they might be feeling really glad to be part of this workshop. And we look forward to many more workshops and having you guys. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Arushi. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Bye. हाँ, आज मेरा होता ना stress Meenakshi ji, management you में are an host. You can end the meeting from your end. Yeah, sure.